ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওসি সাহেব এখন আমাদের মাঝে স্টেজে পৌঁছে গেছেন। সুস্বাগতম মাননীয় অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন জিন্দাবাদ আমাদের মাঝে এবারে বক্তব্য রাখছেন ডব্লিউ সামন্ত সাহেব। ডব্লিউ সামন্ত সাহেবকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। 2 মিনিট। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। এই সত্যের পথে অসহায় মানুষের পাশে সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে। আজকে আপনাদের সামনে আমি হাজির করাচ্ছি অল ওভার ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট। আজ অনেক খুশির দিন। আমাদের সাথে আছেন আসাদুদ্দিন সাহেব। আমি খালি দুটো কথাই বলবো। বাংলার যে মুখ্যমন্ত্রী, উনি আমাদের ফুটবল ভেবে রেখেছেন, উনি আমাদের ফুটবল ভেবে রেখেছেন, আমাদের ভেবে রেখেছেন যে আমরা কারোর সাথে আমরা মনোমাল্য না করে আমরা আমাদের মধ্যে আমাদের যে 1,55,00,000 একটি মেম্বার করে প্রতিশ্রুতি নয়, আমরা সত্যি করে দেখিয়েছি। আর আমরা এইবারে যে আমাদের সোলাঙ্কিজি আমাদের থেকে আজকে এখানে ইলেকশনে লড়ছেন, প্রার্থী হয়েছেন, আমরা তাকে জেতাবো 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 জেতাবো। আমার কাছে এখনো হাজার হাজার ছেলে মেয়ে রাস্তায় আসছেন, তারা অনেক রাস্তায় তারা আটকে আছেন। আর দুটো কথা, আমরা আমাদেরকে ফুটবল মনে হয়েছিল, বিজেপি বলো, তৃণমূল বলো, কংগ্রেস বলো, ভাবে রাখো আমরা নতুন খেল খেলতে থাকি। 2026-27 এবং আমরা প্রত্যেকটা আমরা হচ্ছে পঞ্চায়েতে আমরা প্রার্থী দেবো সারা পশ্চিমবঙ্গে। 19টা জেলায় প্রার্থী আমরা জেতাবো, জিতবো এবং সেই 19টা জেলায় আমরা আমাদের প্রার্থী দিয়ে আমরা প্রার্থী দেওয়া জেতাবো এবং আমরা আমাদের রাজ তৈরি করবো। এই বলি আমার বক্তব্য শেষ করি। এবারে আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন আসাদুল শেখ সাহেব, মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি। আসাদুল শেখ সাহেব, আসাদুল সাহেবকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বেশি সময় আপনাদের মাঝে নিব না, কেন আমি যার বক্তব্য দেখি, যার বক্তব্য না শুনলে আমার রাতে ঘুম আসে না। সেই ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওসি সাহেব আমাদের মঞ্চে বসে আছে। পুরো ভারতবর্ষের দলিত আদিবাসী মানুষের নয়নের মুনি ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওসি আজ রঘুনাথগঞ্জের মাটিতে পা রেখেছে। আপনারা জানেন পশ্চিমবাংলায় মির 8 থেকে 9খানা সিটে ইলেকশন লড়ছে। আমাদের রাজ্য সভাপতি 294 সিটের মধ্যে এই রঘুনাথগঞ্জ সিটকে চয়েস করেছে। আমার বাড়ি জঙ্গিপুর। 12 বছর থেকে দল করছি, আমি ভোট দিতে পারবো না, কিন্তু আপনাদের ভাগ্য ভালো, আপনারা রঘুনাথগঞ্জে মিমের দল, মিমকে আপনারা ভোট দিতে পারবেন। ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওসি সাহেবের হাতকে মজবুত করতে পারবেন, করবেন তো? মমতা ব্যানার্জিকে জিরো করবেন তো? এই মমতা ব্যানার্জি আমাদের ভোট নিয়ে দেখেছে, লকআপ নিয়ে যখন আন্দোলন হয়েছিল আমাদের ভাইদেরকে গ্রেপ্তার করেছিল। আর এই কিছুদিন আগে জঙ্গিপুরে যে একটা ঘটনা ঘটেছে, কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আর তৃণমূলের বিধায়ক এমপিদের এদের মুখে তালা লেগেছে, এরা কি কেউ কিছু বলেনি। আমরা যাদেরকে ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠাই, এরা আমাদের জন্য কাজ করে না, এরা কাজ করে নিজেদের পকেট ভর্তি করার জন্য। জাকির হোসেন থেকে ইমানি বিশ্বাস, খলিলুর সাহেব, এরা সকলেই নিজেরা সরকারি স্কুলকে বন্ধ করে নিজেরা প্রাইভেট স্কুল করছে। এই বলে বক্তব্য শেষ করবো। আসসালামু আলাইকুম।
এরপরে আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অবজারভার আদিল হাসান সাহেব। আদিল হাসান সাহেবকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। আমাদের আজকের এই মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অবজারভার আদিল হাসান সাহেব। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, आपके बीच আপনারা বসে পড়ুন। हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज आज आपके बीच है। मैं रघुनाथगंज वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज बैरिस्टर साहब आपके बीच आए हैं। आपने देखा कि बिहार में कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में मिली, तेलंगाना में हम कामयाब हुए। बंगाल के लोगों आपसे अपील है कि आपके असेंबली में आपकी आवाज नहीं है। जब से बंगाल बना है, कोई दलित को, कोई मुसलमान को, कोई पिछड़ा को, कोई आदिवासी को कभी हुकूमत के नजदीक जाने का मौका नहीं मिला। आज हिंदुस्तान की मजलूमों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच हैं और हम लोग के सभापति इमरान सोलंकी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी आवाज को मजबूत कीजिए। बीजेपी को भी हराना है इंशाअल्लाह ताला, और भी मोदी की जो बहन है ममता बनर्जी, उनको भी चुनाव हराना है इंशाअल्लाह। अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए, अपने लीडर को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करके जहां भी MIM के कैंडिडेट हैं उनको कामयाब कीजिए, और आपका बंगाल का जो सभापति है इमरान सोलंकी भाई को कामयाब करके बंगाल की असेंबली में भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ধন্যবাদ আমাদের আদিল হাসান সাহেবকে, বহুত বহুত শুক্রিয়া। আমাদের মাঝে এবারে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি সাহেব তথা রঘুনাথগঞ্জের AIMI মনোনীত প্রার্থী ইমরান সোলাঙ্কি সাহেব। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমার সৌভাগ্য, আজকে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হলো। আজকে মুর্শিদাবাদ মাটিতে যারা ব্যারিস্টার সাহেব আমাদের সদর, আমাদের জাতীয় সভাপতি আমাদের সামনে প্রস্তুত আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে আমি বেশি হবে 2 মিনিট সময় নিব। আমাদের সভাপতি বলবো, আপনার স্বপ্ন ওনাকে শুনতে এসছেন। এবার আপনারা ভোট করবেন। আপনার মনে আছে আমাকে ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের টিএমসি আমাদের নেত্রী কি বলেছিল, মনে আছে? এবার যদি কেউ অন্য কথা দিল্লিতে যাও, মনে আছে আপনার সবাই? একটা কথা বলছি আমি, আমাদের টিএমসি যে আমাদের নেতা, আমাদের মন্ত্রীজি আছে তো এখানে, আকিব সাহেব, ওনাকে উত্তর দিবেন, বলবেন হ্যাঁ এবার সংখ্যালঘু ভোটের চোট আর দিল্লিতে গিয়ে চাও ভোট। কি বলবেন? এবার সংখ্যালঘু ভোটের চোট আর দিল্লিতে গিয়ে চাও ভোট। এবার ভোট দিতে হবে। আমরা সারা জীবন ভোট দিতে এসছি ভাই। আমরা যে ভোট দিব এবার আমাদের শিশুর জন্য ভোট দিতে হবে, আমাদের শ্রমিক ভাইয়ের জন্য ভোট দিতে হবে, আমাদের উন্নয়নের জন্য ভোট দিতে হবে, আমাদের মহিলা, আমাদের মা বোনের জন্য ভোট দিতে হবে। আজকে আমাদেরকে কি ভাতা দিচ্ছে, হ্যাঁ কিনা বলুন? আমার ভাতা লাগবে? আমাদের কি লাগবে? আমাদের শিশুর জন্য আমাদের ভালো স্কুল লাগবে। আমাদের কি লাগবে? আমাদের মা বোনের জন্য ভালো চিকিৎসা হসপিটাল লাগবে। এখানে হসপিটাল আছে? আমাদের ভাতা দরকার নেই, আমাদের দরকার কর্মসংস্থান। ঠিক না বল? আর শুনুন, কিছুদিন আগে এই মাঠে নেমেছিল এই পশ্চিমবঙ্গের বড় নেতা। সবাই বসে যান, আমরা সবাই বসে যান ভাই, একটু দেখুন। শুনুন, 2 মিনিট কথা বলে শেষ করবো। এই আমার মাঠে 4 দিনের কেস ছিল, পশ্চিমবঙ্গের নায়ক এসেছিল, মনে আছে? এই মন্ত্রীর জন্য এসেছিল, মন্ত্রীর জন্য মনে আছে? দেখেছেন? মিটিং করতে পারিনি, আলহামদুলিল্লাহ র্যালি করে গিয়েছে। আবার আমাদের আকুসামা সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। আগামী দিন এখান থেকে আপনার প্রথম বিধায়ক করবেন তো, প্রধানমন্ত্রী করবেন তো? বলবেন আকুসামা সাহেব আপনি চলে যান কলকাতায়, গিয়ে ওখানে আবার ছবিতে কাজ করেন, বইতে 150 মার্ক রাখুন। ঠিক না বল? আমাদের শিশু স্কুল কোথায়? এখানে স্কুল আছে? আর আকুসামা সাহেব এখান থেকে ভোট নিয়ে এখানকার MLA, এখানকার মন্ত্রী, ওনার ছেলে কোথায় পড়াশোনা করে জানেন সবাই? এই কলকাতা সল্টলেকে জানেন তো?
জানেন তো আমাদের এখানে স্কুল করবে না, আমাদের এখানে শ্রমিক করে রাখবে। আর আমাদের শ্রমিক ভাই এখানে যখন কাজ করা নিজের পরিবারের জন্য যদি বাইরে যদি যাবে, পরিবারের জন্য কাজ করতে যায়, তারপরে কি করে এখান থেকে আমার বডি আসে। মনে আছে জল গানা? জল গানা মনে আছে? কে কথা তুলেছিল জল গানার জন্য? একমাত্র আমাদের সদর সাহেব, বারিশা সুদুমাই সাহেব, মনে আছে তো? তারপরে মমতা দিদি, ওনাকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ওনাকে চাকরি বাড়িতে একটা চাকরি, ছোট চাকরি দিয়েছে। কেন? নির্বাচন আসছে। আজকে বলুন, আমাদের ভাইরা শ্রমিক আছে, তাদেরকে বাইরে গিয়ে উড়িষ্যাতে দিয়ে ওরা আক্রান্ত হচ্ছে, ওদের বডি আসছে, ওরা মারধর করছে এই মুর্শিদাবাদের লোককে। আর আমাদের এখানে বিদ্যুৎ, আমাদের ভবন আছে তো, বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে সাগর দিঘিতে, জানেন সবাই? ওখানে 15,000 মানুষ উড়িষ্যা লোক কাজ করে। কত? 15,000। আর এই 15,000 দিনে আমাদের লোক কাজ করতে পারবে না? আমাদের মন্ত্রী, বিদ্যুৎ মন্ত্রী তো কেন কাজ দিচ্ছে না? কেন উড়িষ্যা থেকে আসছে? আমাদের মন্ত্রী কাজ করেনি এটা বলবো না। আমাদের মন্ত্রীজি আকুজম সাহেব দুটো কাজ করেছেন। যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলায়, উনি যখন কথা তুলে বলে তখন তালি বাজায়, ঠিক না বল? ঠিক তো? আরেকটা অনেক বড় কাজ করেছে, যেটা আমাদের জন্য না, সেটা দিদিকে দেখাবার জন্য। ভোট আমাদের নিয়ে গেছে, ভোট আমাদের নিয়ে গেছে, আর কাজ করে দেখাবে দিদিকে। এই জগন্নাথ টেম্পল হয়েছিল, মনে আছে তো? মনে আছে পুরীতে? আমরা কোনো হিন্দু বিরোধী নেই, আমরা সঙ্গে, আমরা সম্মান করি হিন্দু, আমরা সবাই সম্মান করি। কিন্তু আপনি বলবেন আমি প্রসাদ খাবো, এটা হবে না। আমাদের খুলতামা সাহেব সবাইকে বড় বড় বাড়িতে গিয়ে, ঘুরে ঘুরে গিয়ে, প্রধান মন্ত্রী, এমএলএ গিয়ে, এমপি গিয়ে আমাদের প্রসাদ খাইয়েছে কিনা, ঠিক না বল? মনে আছে কিনা? এটা আমরা ভুলে যাই ভাই, আমরা সংখ্যালঘু, আমরা ভুলে যাই আমাদের যে ব্যথা, আমরা ভুলে যাই। এবার আপনারা ভোট দিবেন, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার কাছে এসছি, আপনাদের ভোট, আপনাদের মতামত, এই ভোট আপনাদের মতামত। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন ভাই, আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ আমাকে ইমানদার থাকুক, রাখুক, ইনশাআল্লাহ। দোয়া করবেন তো? করবেন তো? আজ থেকে ভাই আমাদের কালকে পাবলিক মিটিং আছে, সাথে আমাদের আসছেন ইনশাআল্লাহ। আমি রাজ্য সভাপতি, আমাদের ব্যবসা আমাকে বলেছে আমি সব থেকে বেশি সময় তোমার বিধানসভায় দিব, আর তোমার এখান থেকে জিতে যাবো। আমি বলছি আমাদের পাবলিক সামনে এখানে বসে আছেন সাহেব, আমাদের বাবাজি মানে খুব কেটেছেন, আমাদের আসাদুল শেখ সাহেব, আমাদের আদেশান সাহেব, আমাদের ইনচার্জ পশ্চিমবাংলা, সবাই মিলে খাচ্ছে ভাই আমাদের জন্য। আর আমরা আমাদের জন্য আসিনি, আমার দরকার নেই, আমি আমার জন্য আসিনি। একটু সবাই বসেন ভাই, একটু বসেন। আমি আমার জন্য আসিনি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ অনেক কিছু দিয়েছে আমাকে, আল্লাহ পাক অনেক কিছু দিয়েছে। আমি আপনাদের জন্য এসেছি, আপনাদের জন্য কাজ করতে এসেছি। আপনাদের কাজ কে করবে? আজকে একটা কথা, ছোট্ট কথা বলে শেষ করবো। আপনার কথা বলুন, আপনারা 3 বার টিএমসি মন্ত্রী করেছেন, এমএলএ করেছেন আকুজমা সাহেবকে, ঠিক কেমন? 15 বছরে কি কাজ করেছেন বলুন আমাকে? কিছুই না। কিছু করেছে? আর এখন যদি কাটমানি, আর যদি এখন যদি আপনার ভোট করোকে, তাহলে আগামী 5 বছর কোনো কাজ করবে? তাহলে এবার ভোট আমার, রাজ তোমার চলবে না। ভোট আমার, রাজ তোমার চলবে না। আমার ক্ষমতা নেই। আমার সাদা সাহেব এখানে বসে আছেন, আমি ওনার সামনে কোনোদিন বক্তব্য দিই, কিন্তু আপনার আছে, আপনাদের যে ভালোবাসা থেকে আমি একটু ক্ষমতা এসছে, আমি বক্তব্য দিয়েছি। আগামী দিন ভোট দিবেন, আর আমার সঙ্গে একটা নারা লাগিয়ে দিন ভাই, একটা नारा लगे दे एक बार। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना तो कोहराम बचा दो। आओ मेरी आवाज से आवाज लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बादशाह असदुल वजी साहेब, असदुल वजी साहेब, असदुल वजी साहेब, आदिल हसन साहेब, आदिल हसन साहेब, असदुल
असदुल शेख साहेब अस्सलाम वालेकुम। এবার আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখতে আসছেন শেরে হিন্দুস্তান ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব। ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওখানে আসছেন। আসাদুল ইসলাম স্বাগতম, আসাদুল ইসলাম স্বাগতম। Allahu Akbar! Zindabad! Zindabad! Seraya, seraya! Seraya, seraya! Allahu Akbar! Love you, sir! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Walaikum मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकालकर रघुनाथगंज विधानसभा के इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहनश मंच पर मौजूद जनाब इमरान सोलंकी साहब, जो रघुनाथगंज के मजलिस के उम्मीदवार हैं, असदुल साहब, असनद जहां साहब, बबलू सामंतू साहब, एसके सलीम साहब, सफ़ीकुल इस्लाम साहब, नफीस अंसारी साहब, सुजा मंडल साहब, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से एक रिक्वेस्ट करने, गुजारिश करने कि 23 तारीख को आपको मुत्तहदा तौर पर अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए पतंग के निशान पर आपको बटन लगाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपनी एक सियासी लीडरशिप को कामयाब करिए। याद रखिए कि बंगाल में आप पिछले 70 साल से कभी आपने बंगाल में आपने 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो फिर कभी आपने नेहरू का साथ दिया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, फिर आपने ज्योति बाबू को वोट दिया, उसके बाद अब आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं मुर्शिदाबाद की जनता से और खास तौर से रघुनाथगंज की जनता से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सबको साथ दिया, आपने सबको वोट दिया, मगर याद रखिए किसी ने भी आपसे इंसाफ नहीं किया, किसी ने भी हमारे बच्चों के रोजगार को या फिर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर इंडस्ट्री लगाने की बात की। आपने ममता बनर्जी को 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, कई मरतबा आपने उनके उम्मीदवारों को दिल्ली की लोकसभा में और राज्यसभा में भिजाया। अब की बार आपको बड़ी एहतियात और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियत से बहुत नाइंसाफी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दहे में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहाँ से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। हट जाओ भाई, बैठ जाइए ना, बैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस कश्मीर में चोरी हो गया, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ।
ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशरम है कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। बताओ उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले क्या तुम अंधे हो गए थे, क्या तुम बहरे हो गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहते हैं कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी, आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रेफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम किया। शालम रेफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जूहापुरा में मंजलिस जाकर काम की। ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि मैं मुस्लिम बहनों की बहन हूं। ममता बनर्जी क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को और टीएमसी को याद नहीं आया। ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। 4 एमएलए बीजेपी के थे, 5 साल पहले जीतकर 77 हो गए। क्या उसमें भी ओवैसी जिम्मेदार है? बताओ आप। मेरे भाई, सब लोग आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, कोई आपको आपका हक देना नहीं चाहता है। ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज है तो ये गाय और भैंस है, इनका वोट ऐसा हासिल कर लो जैसे गाय और भैंस से दूध हासिल किया जाता है। आप कब तक उन लोगों का साथ देंगे जो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते? क्या ये बात सच नहीं है ममता बनर्जी कि मुर्शिदाबाद में पर कैपिटा इनकम कितना है, जहां पर 70% के करीब मुस्लिम बाहुल आबादी का इलाका है। पर कैपिटा इनकम करीब 3,500-4 हजार रुपये महीने को कोई कमाता है। बताओ ममता बनर्जी, क्या 4,000 3,500 में किसी गरीब का घर चल सकता है? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि मुर्शिदाबाद से 16 लाख हमारे बच्चे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और दुबई में जाकर काम करते हैं? आज यही मुर्शिदाबाद का बच्चा दुबई के बुर्जुल खलीफा की बिल्डिंग बनाने में काम किया, मगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों ने मुर्शिदाबाद में एक इंडस्ट्री नहीं बनाते हैं। आज मुर्शिदाबाद की हमारी बहनें क्या करती हैं? यहां पर 1000 बीड़ी अगर दिन में बनाती हैं तो 195 रुपये उनको मिलते हैं। 195 रुपये मिलते हैं उनको 1000 बीड़ी बनाने के लिए। अरे ममता बनर्जी, जब तुम दोबारा यहां पर आओगी मुर्शिदाबाद में तो उन बहनों की उंगलियां उठाकर देख लो, उनकी उंगलियां गल चुकी है बीड़ियां बना। आज ओवैसी उन बहनों से कह रहा है कि आपने बरसों उन लोगों का साथ दिया
जिन्होंने आपको धोखा दिया। आज अगर बीजेपी बंगाल में स्ट्रांग बनती जा रही है तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 1998 में दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का पहला एमपी कामयाब करवाया। टीएमसी के लोग, तुम अगर सेकुलरिज्म के बारे में बहस करना चाहते हो तो वक्त तय कर लो, कलकत्ता में एक टाइम तय कर लो, बैठकर मुझसे बहस कर लो, मैं तुमको बता दूंगा कि तुमने कितना बड़ा धोखा दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज मजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा। 1000 बीड़ी पर 195 रुपये मिलना, ये कौन सी इंसाफ की बात है। मजलिस इसको खत्म करेगी। और यहाँ पर हमारे जो इमरान सोलंकी के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार है अख्तरुज्जमा साहब, अख्तरुज्जमा साहब ये तो बता दो, पिछले साल 5 लाख ओबीसी का सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 3.5 लाख का सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज के थे। बताओ, हमारे बच्चों को स्कूल और एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और ममता बनर्जी के जबान पर है ओवैसी आएगा तो वो कट जाएगा। आप बताइए, नाइंसाफी तुम कर रहे हो, बीजेपी को तुम मजबूत कर रहे हो और आरएसएस को सर्टिफिकेट तुम देते हो, और तुम हमसे पूछते हो कि वोट लेने क्यों आए। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पर आप देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर ये आपका वेस्ट बंगाल में जितना डेवलपमेंट होता है सिर्फ कोलकाता के तरफ में होता है, जितना डेवलपमेंट होता है केएमए के इलाके में होता है। आप देख लीजिए। फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जितने इंडस्ट्रीज बनाए गए, मुर्शिदाबाद से इनको नफरत है ममता बनर्जी को। कहाँ बनता है? खड़गपुर में, हल्दिया में, हावड़ा में, वहीं पर बनाते हैं। SEZ क्यों नहीं बना सकते मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी? आप क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि मुर्शिदाबाद का गरीब मुसलमान को ममता जानती है कि बीजेपी का डर दिखाओ और इनका वोट हासिल कर लो। मुर्शिदाबाद के गरीब आवाम, मुर्शिदाबाद के मेरे भाई और बहनों, अगर आप रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी को कामयाब करेंगे और मुर्शिदाबाद में इंडस्ट्री नहीं लाई जाएगी, मुर्शिदाबाद में हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा इमरान सोलंकी आपका नया एमएलए बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए ओवैसी कोलकाता में चक्का जाम कर देगा। अब नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई हमारी हक की है। इस हक की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हर जगह पर मुर्शिदाबाद को नुकसान पहुंचाने के लिए टीएमसी ने काम किया। मैं लिख कर लाया हूं, आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी के दौर में क्या हुआ। यहां पर देख लीजिए, रघुनाथगंज 2 है, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर बच्चे हमारे स्कूल को नहीं जाते। जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारी बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है।
क्यों नहीं है? इसलिए कि ममता बनर्जी बोलती है कि तुम सिर्फ वोट डालने वाले हो, तुमको अस्पताल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों को स्कूल की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, इस नाइंसाफी का आप खात्मा करो। और आप जाकर देखो, सालनपुर है, वहां पर ममता बनर्जी ने स्कूल भी बनाया, अस्पताल भी बनाया, अस्पताल में डॉक्टर को भी दिया, अस्पताल में बेड को भी दिया, मगर कहां पर नहीं करते हैं? मुर्शिदाबाद में नहीं करते। एयरपोर्ट है कोलकाता का, मगर मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए 250-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सादा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। मैं अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, बिहार में हमारे 4 एमएलए तोड़ लिए, तो बताओ तोड़ने वाले सेकुलर थे क्या? उन्होंने 4 तोड़ा और अल्लाह ने सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने दोबारा हमारे एमएलए को कामयाब कर दिया। राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, जिन्होंने हमारे एमएलए तोड़े हमने उनका साथ दिया। राजद के 3, कांग्रेस के 3 एमएलए गए, राजद का एक मुस्लिम एमएलए गए। बताओ, जब बी टीम कौन थी? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैंने किसको वोट दिया बता दो? तेलंगाना में जुबली हिल का बाई इलेक्शन हुआ, मजलिस ने किसका साथ दिया बता दो? अरे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते कि बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत की पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाए। मैं यहाँ पर अपनी लीडरशिप के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ ताकि रघुनाथगंज से आपके दरमियान में हमारी और बेटी और भाई नेता बने, नेता बने, नेता बने। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने आप को कामयाब करिए। कैंडिडेट उम्मीदवार इमरान सोलंकी नहीं है, कैंडिडेट रघुनाथगंज का हर बच्चा है और बेटी हर मां है। आपको मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए, विकास के लिए आपको वोट देना है। बीजेपी को जरूर रोकना है। कितने सीट पर मजलिस लड़ रही है? 10 या 11 सीट पर मजलिस लड़ रही है। बताओ फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है? तुम तो बीजेपी का साथ देते आए हो, तुमने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी का एजेंडा फाशिस्ट एजेंडा है।
बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है, मगर एक बात याद रखो, ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से, तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। याद रखो, वोट का सही इस्तेमाल करिए, MIM पार्टी को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नारा लगाऊंगा, मेरे नारे लगाने पर भी ये सेकुलरिज्म के झूठे दावेदारों को पेट में तकलीफ होती है। लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, 23 तारीख को पतंग वोट देकर कामयाब करिए।